నేను మాత్రం మా ఇద్దరు పిల్లల్ని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ స్కూల్లో మాత్రమే చదివిస్తాను. ఇలా అన్నీ ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. నాకు అన్ని నెంబర్ 1 కావాలి. అందుకే నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. అది మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత. Hello children, this is Usha. Today I am going to say you 8th class grammar, and this grammar is useful for you up to 10th class. And today I am going to say about car, that is nothing but in English for you tense. What is that? Car, it is in English tense. And this car was divided into 3 parts. First one is Vartaman Kal, Bhoot Kal, Bhavishyat Kal. Vartaman Kal means in English for you present tense. Bhoot Kal means past tense. And Bhavishyat Kal future tense. It was divided into 3 parts: Vartaman Kal, Bhoot Kal or Bhavishyat Kal. Today we are going to learn about Vartaman Kal. Firstly, I would like to say a sentence is divided into 3 parts. Ram pustak padhta hai. Ram karta, pustak karma, padhta kriya. So राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है. Means we can identify the sentence is in वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्यत काल by looking towards the kriya, the verb. Kriya means the verb. By looking to the verb we can identify the in which tense it is. Full sentence there will be no change, only in verb there will be a change. So by changing the verb, we can change the sentence into the 3 forms: Vartaman Kal ya Bhutakal ya Bhavishyat Kal. Firstly, I would like to say how the verb will be formed. Pad, a mool dhatu hai. For that if you add na, then it will become a verb, kriya. Same way sun. Sun मूल धातु है, उसको ना जोड़ने से if you add na, then it will become a verb सुनना. It means to listen. लिख, ये मूल धातु है. For that if you add na, then it will become a kriya लिखना, to write. In this way for all the verbs, it was divided मूल धातु and then it will be added na and then it will form a verb या kriya. And today now I am going to say you about Vartaman Kal. About Vartaman Kal. Vartaman Kal 4 प्रकार है. It means 4 types. Vartaman Kal 4 प्रकार, 4 types. First one is सामान्य Vartaman Kal. And second one is अपूर्ण Vartaman Kal. And third one is पूर्ण Vartaman Kal. And fourth one is संदिग्ध Vartaman Kal. In English also you will be having 4 types only. सामान्य वर्तमान काल simple present, अपूर्ण वर्तमान काल present continuous, पूर्ण वर्तमान काल present perfect continuous, संदिग्ध वर्तमान काल it is a doubt whether it will be there or not. So all these 4 types we are having. How we are having in English? Same way: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल. Now we will go detailedly about how it will be changes. सामान्य वर्तमान काल. Now I am going to say about सामान्य वर्तमान काल. सामान्य वर्तमान काल के लिए कर्ता, कर्मा, क्रिया will be added in a sentence. Already before I said to you. For that मूल धातु, for the verb I am saying मूल धातु. मूल धातु plus ता, ते, ती और उसको प्लस उसके सहायक क्रिया हाई, हाइम, हुम और हो. ये सहायक क्रिया एम है. मूल धातु द मेन वर्ब प्लस ता, ते, ती, हाई. Ta will be added for the
पुल्लिंग एकवचन, ते विल बी एडेड फॉर पुल्लिंग बहुवचन, ती इज फॉर स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन, और हाय पुल्लिंग एकवचन के लिए, हाय पुल्लिंग बहुवचन के लिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए। whom, if you start a sentence with my, it will be ended with whom, and if you start a sentence with तुम, it will be ended with whom. So ये सामान्य वर्तमान काल के लिए है। For examples I am saying राम पुस्तक पढ़, ये मूल धातु है पढ़ प्लस ता, why it will be added, ता means पुल्लिंग एकवचन, पुस्तक पढ़ता है पुल्लिंग एकवचन है। सीता, सीता पुस्तक, सीता स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ मूल धातु प्लस ती, पढ़ती है। राम और रहीम, राम और रहीम पुस्तक पढ़, पुल्लिंग बहुवचन, राम और रहीम बहुवचन है इसलिए पढ़ इट विल बी एडेड ते, पढ़ते है के ऊपर अनुस्वर डॉट, बिकॉज इट इंडिकेट्स द प्लूरल टेंस। सीता और गीता, सीता और गीता पुस्तक पढ़ स्त्रीलिंग है बहुवचन, पढ़ती स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए ती ओनली, बट एट द एंड हाई इट इंडिकेट्स प्लूरल, हाई के ऊपर अनुस्वर डॉट। और आप पुस्तक पढ़, हियर ता ते ती विच इन इट विल कम मिस ते, बाय मिस आप गौरववाचक है इसीलिए इट शुड बी एंडेड विथ प्लूरल, पढ़ते हाय के ऊपर अनुस्वर। सेम वे माई, इफ यू स्टार्ट द सेंटेंस बाय विथ माई पुस्तक पढ़ता whom, it should be ended with whom। तुम पुस्तक पढ़, पढ़ते बहुवचन हो, it should be ended with ho, if you start a sentence with तुम it should be ended with ho। once again see, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती स्त्रीलिंग, राम और रहीम पुल्लिंग बहुवचन इसीलिए ते और उस हाई के ऊपर अनुस्वर, बिकॉज इट इज इन प्लूरल टेंस। सीता और गीता पुस्तक पढ़ती, हाई के ऊपर अनुस्वर बिकॉज इट इज प्लूरल टेंस। आप पुस्तक पढ़ते हैं, आप गौरववाचक है, सेम वे पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं गौरववाचक के लिए इट शुड बी एंडेड विथ प्लूरल टेंस। my, if you start any sentence with my it should be ended with whom, and if you start any sentence with tum it should be ended with ho। सामान्य वर्तमान काल means which has completed, which is going on at present, which is being done at present, it is called सामान्य वर्तमान काल। We have completed सामान्य वर्तमान काल, now अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया की जिस रूप से सामान्य रूप से जिस प्रकार वर्तमान में होने वाला है, it means at present it was started and it is continuing, it was not ended, at present tense it is being started and it is continuing। for this how it will be changed means nothing will be there, मूल धातु, for that just for मूल धातु रहा पुल्लिंग एकवचन, रहे पुल्लिंग बहुवचन, रही स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए, और प्लस हाय सहायक क्रिया एम हाइम बहुवचन के लिए, हुम माई के लिए, और हो तुम के लिए। सेम वे इंस्टेड ऑफ ता ते ती यू विल बी एडेड रहा रहे रही सहायक क्रिया एम, सेम वे इट विल बी। हाउ इट विल बी चेंज्ड विद द सेम एग्जांपल आई एम गोइंग टू से karta karma will be in the same way, just we will be having change with the verb only there will be change with the verb। राम पुस्तक पढ़ मूल धातु सेम वे, पुल्लिंग एकवचन के लिए रहा, और सहायक क्रिया एम है। सीता पुस्तक पढ़ मूल धातु सीता स्त्रीलिंग इसीलिए रही, और सहायक क्रिया एम है हाई, बिकॉज इट इज इन ए सिंगुलर
राम और रहीम बहुवचन है, इसीलिए मूल धातु के लिए पढ़ के लिए रहे, बिकॉज इट इज प्लूरल रहे। और सहायक क्रिया एम है हाई, हाई के ऊपर अनुस्वर, ये बहुवचन के लिए। सीता और गीता बहुवचन और पढ़ रही स्त्रीलिंग है, बहुवचन के लिए हाई के ऊपर अनुस्वर, स्त्रीलिंग बहुवचन। आप पुस्तक पढ़ मूल धातु सेम वे पढ़, आप बहुवचन गौरववाचक है इसीलिए प्लूरल टेंस रहे, हाई के ऊपर अनुस्वर। मैं पुस्तक पढ़, मैं पुस्तक पढ़ रहा, और इट शुड बी एंडेड विथ whom। और तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, it should be ended with ho, because if you start a sentence with तुम, it should be ended with ho। Once again see, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, it means रहा, it is nothing but in English ing form। रहा means it indicates the continuous tense। so राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम is reading the book, reading ing form for you in English। राम पुल्लिंग एकवचन है इसीलिए रहा है, सीता स्त्रीलिंग एकवचन है इसीलिए रही है, राम और रहीम पुल्लिंग बहुवचन इसीलिए रहे, और अंत में हाई के ऊपर अनुस्वर। सीता और गीता स्त्रीलिंग बहुवचन है इसीलिए स्त्रीलिंग रही, और हाई के ऊपर अनुस्वर। आप इसके लिए गौरववाचक है, आप पुस्तक, इफ इट इज गौरववाचक देन इट शुड बी एंडेड विथ प्लूरल टेंस रहे है। My, if you start a sentence, it should be ended with whom, and if you start a sentence with tum, it should be ended with ho। So ये अपूर्ण वर्तमान काल है, it means at present which was started and it is being continuing, then it is called as अपूर्ण वर्तमान काल। Now we have completed सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। Now I am going to say पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इट मीन्स एट प्रेजेंट विच वाज स्टार्टेड, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में प्रारंभ हुआ है और अभी पूरा हुआ है, विच वाज कंप्लीटेड एट प्रेजेंट। पूर्ण वर्तमान विद द सेंटेंस विच वाज विद द थिंग विच वाज कंप्लीटेड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस इट वाज स्टार्टेड एंड इट वाज कंप्लीटेड एट प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का पूरा होने की, वर्तमान में पूरा होने की जानने के लिए पूर्ण वर्तमान काल है। ये पूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार के, कर्ता कर्मा ऑलरेडी यू नो, उसकी मूल धातु, इसके लिए चुका पुल्लिंग एकवचन के लिए, चुका पुल्लिंग बहुवचन के लिए, चुकी स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए, और उसके साथ सहायक क्रिया एम है हाई, हाइम, whom और ho। The same examples I am going to say that so you can understand clearly। So I am there is a verb, it means the क्रिया, क्रिया को मैं पहुंच रहा हूँ, just I am taking away the verb। राम पुस्तक it means कर्ता कर्मा, मूल धातु, मूल धातु क्या है, पढ़, मूल धातु पढ़ के लिए चुका पुल्लिंग एकवचन, पढ़ चुका, और सहायक क्रिया एम है हाई, पुल्लिंग एकवचन, राम पुस्तक पढ़ चुका है, और स्त्रीलिंग के लिए सीता पुस्तक पढ़ चुकी, स्त्रीलिंग के लिए चुकी, इट मीन्स पर सीता इट इज चुकी, और सहायक क्रिया एम है हाई। राम और रहीम पुस्तक पढ़ मूल धातु है, उसके लिए बहुवचन है इसलिए चुके, और हाई के ऊपर अनुस्वर डॉट बिकॉज इट इज बहुवचन। सीता और गीता पुस्तक पढ़ चुके, स्त्रीलिंग है इसीलिए चुकी, और स्त्री बहुवचन है इसीलिए हाई के ऊपर अनुस्वर। आप पुस्तक पढ़ बहुवचन, क्योंकि ये गौरववाचक है, पढ़
चुके बहुवचन है, हाई के ऊपर अनुस्वर। और मैं पुस्तक पढ़ चुका। Whom, it should be ended with whom, because if any sentence was started with my, it should be ended with whom. Same way, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, it should be ended with हो, because if you start a sentence with तुम, it should be ended with हो। ये पूर्ण वर्तमान काल है। मूल धातु के लिए चुका पुल्लिंग एकवचन, चुके पुल्लिंग बहुवचन, चुकी पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन के लिए, और उसकी सहायक क्रियाएं को रखना है। और अगेन आई एम गोइंग टू से द एग्जांपल्स। राम पुस्तक पढ़ मूल धातु है, चुका पुल्लिंग एकवचन है, उसकी सहायक क्रियाएं है हाई। सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए मूल धातु के साथ चुकी हाई, ये स्त्रीलिंग एकवचन है। राम और रहीम पुस्तक पढ़ चुके, क्योंकि ये पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए चुके और हाई के ऊपर अनुस्वर है बहुवचन के लिए। सीता और गीता पुस्तक पढ़ चुकी, स्त्रीलिंग है, इसीलिए हाई के ऊपर अनुस्वर, बिकॉज इट इज बहुवचन। आप गौरववाचक है, पुस्तक पढ़ चुके हाई, इट मीन्स इट शुड बी एंडेड विथ प्लूरल बिकॉज गौरववाचक है। My, if you start the sentence, it should be ended with whom. Same way तुम, if you start the sentence, it should be ended with who. Up to now we have completed सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। Now संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहता है। संदेह, it means doubt, it will be done or not, we don't know। ये संदेह है, संदिग्ध means संदेह, doubt we are having, so that type of sentences we will call as संदिग्ध वर्तमान काल। Here also same way कर्ता, कर्मा और क्रिया, उसके लिए मूल धातु प्लस ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, it can be anything। ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, anything it can be। और प्लस उसके सहायक क्रिया एम है हाई, हाई सेम एज यूजुअल, whom और हो। But here you will be having 6 things because it can be ended with मूल धातु के साथ ता भी हो सकता है, रहा भी हो सकता है, it can be ता और रहा, no problem for that। So संदिग्ध वर्तमान काल के लिए मूल धातु प्लस ता, ते, ती, रहा, रहे, रही और सहायक क्रियाएं है। With the same examples I am going to say for you the same thing for संदिग्ध वर्तमान काल also। संदिग्ध वर्तमान काल के लिए मूल धातु प्लस ता, ते, ती, रहा, रहे, रही और उसके साथ प्लस होगा। पुल्लिंग एकवचन के लिए होंगे, पुल्लिंग बहुवचन के लिए होगी, स्त्रीलिंग एकवचन के लिए होंगी, स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। इस प्रकार मूल धातु प्लस ता, ते, ती, रहा, रहे, रही और डाउट संदिग्ध, इसीलिए होगा, होंगे बहुवचन के लिए, होगी स्त्रीलिंग और होंगी स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। Now I am going to say with the examples। राम पुस्तक पढ़, it can be ता और रहा, पढ़ता, और पुल्लिंग एकवचन के लिए होगा, राम पुस्तक पढ़ता होगा। सेम वे स्त्रीलिंग के लिए सीता पुस्तक पढ़ती या पढ़ रही, आई विल यूज हियर रही, पढ़ रही होगी, स्त्रीलिंग एकवचन के लिए। राम और रहीम पुस्तक पढ़ मूल धातु प्लस बहुवचन के लिए ते और इट कैन बी रहे आल्सो, पढ़ते होंगे पुल्लिंग बहुवचन के लिए। सीता और गीता पुस्तक पढ़ती होंगी, पढ़ती होगी बिकॉज इट इज प्लूरल टेंस, पढ़ती होगी और होंगी। आप पुस्तक गौरववाचक है, पढ़
ते प्लूरल टेंस, इट शुड बी एंडेड विथ प्लूरल सेंस बिकॉज आप गौरववाचक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इट शुड बी एंडेड विथ हूँ। और तुम पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते होंगे। मैं पुस्तक पढ़ता होगा और तुम पुस्तक पढ़ते होगे। इन दिस वे संदिग्ध वर्तमान काल के लिए मूल धातु प्लस ता ते ती, रहा रहे रही, एनीथिंग इट कैन बी एडेड। और होगा पुल्लिंग एकवचन, होंगे होगी होंगी। राम पुल्लिंग एकवचन है इसीलिए पढ़ मूल धातु के साथ था और एकवचन के लिए होगा। सीता पुस्तक पढ़ रही या पढ़ता, एनीथिंग इट कैन बी होगी स्त्रीलिंग के लिए। राम और सीता पुस्तक पढ़ते होंगे, बहुवचन है इसलिए होंगे। सीता और गीता पुस्तक पढ़ती होंगी, स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। सेम वे आप पुस्तक पढ़ते होंगे, मैं पुस्तक पढ़ता होऊंगा, तुम पुस्तक पढ़ते होगे। सो इन दिस वे वी विल हैव द संदिग्ध वर्तमान काल, मूल धातु प्लस तातेती। संदिग्ध इट मीन्स ए डाउट, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल इस प्रकार 4 प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल के लिए मूल क्रिया की मूल धातु प्लस तातेती प्लस सहायक क्रिया एम है, हाय हाय हो हुम। और अपूर्ण वर्तमान काल के लिए क्रिया की मूल धातु प्लस रहा रहे रही, हाय हाय हो हुम। और पूर्ण वर्तमान काल के लिए क्रिया की मूल धातु प्लस चुका चुके चुकी, हाय हाय हो हुम सहायक क्रिया एम है। और संदिग्ध वर्तमान काल के लिए क्रिया की मूल धातु प्लस ता ते ती, रहा रहे रही प्लस होगा होंगे होगी होंगी। इस प्रकार सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल के लिए ये फॉर्मूला है। Today we had completed वर्तमान काल, remaining भूतकाल और भविष्यत काल we will have it in the next class. Thank you. నేను మాత్రం మా ఇద్దరు పిల్లల్ని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ స్కూల్లో మాత్రమే చదివిస్తాను. ఇలా అన్నీ ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. నాకు అన్ని నెంబర్ 1 కావాలి. అందుకే నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. అది మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత.